ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے دوسرے ہائی کورٹس میں تبادلوں کی کثرت رائے سے منظوری دے دی گئی۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور، جسٹس سمن رفعت امتیاز کو سندھ اور جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ بھجوا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کی ٹرانسفر اکثریت کی بنیاد پر کی گئی۔ جوڈیشل کمیشن کے 9 ارکان نے جسٹس محسن اختر کیانی کے تبادلے کے حق میں ووٹ دیا۔ تبادلے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے نام دیے گئے۔ جسٹس ارباب طاہر، جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی گئی۔ اعلامیے کے مطابق خالی ہونے والی اسامیوں پر نئی تعیناتی نہیں کی جائے گی، تبادلوں سے ہی یہ اسامیوں پر کی جائے گی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز تبادلے ہوتے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سندھ کے لیے روانہ ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور رہنما بیرسٹر علی ظفر نے ججز کے حالیہ تبادلوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے آزادی عدلیہ کے خلاف اقدام قرار دے دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا، آج عدلیہ کے لیے افسوسناک دن ہے۔ آج عدلیہ پر وار کیا گیا۔ تمام ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد مکمل تھی اور اس کے باوجود تبادلے کیے گئے جو عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ کسی بھی جج کی بلا وجہ تبادلہ نہیں کیا جا سکتا اور ایسا کرنا آئین کے منافی ہے۔ ججز کے ٹرانسفر کو بطور سزا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے عدالت نظام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تبادلوں کی وجوہات سامنے لانا ضروری ہے، بصورت دیگر یہ بدنیتی پر مبنی اقدام تصور ہوگا۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق طویل عرصے سے گروپ کا اہم رکن رہنے والا ملک تنظیم سے الگ ہو رہا ہے، جس سے عالمی توانائی اتحاد پر اثرات متوقع ہیں۔ امارات نیوز ایجنسی کے مطابق یہ فیصلہ 1 مئی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس اقدام کے بعد امارات کو تیل کی فروخت اور توانائی پالیسی میں زیادہ خود مختاری حاصل ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اس فیصلے سے عالمی تیل مارکیٹ پر اثر پڑنے کا امکان ہے، جبکہ اوپیک اور اوپیک پلس کی مجموعی حکمت عملی پر بھی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اوپیک کا قیام 1960 میں عمل میں آیا تھا، جس کے اہم رکن ممالک میں سعودی عرب، ایران، عراق اور کویت شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دوران گفتگو دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور رابطوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے تعمیری کردار پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ یو این سیکرٹری جنرل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف مئی کے دوسرے ہفتے چین کا دورہ کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ سی پیک منصوبوں پر پیش رفت ایجنڈے کا اہم حصہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ مشرق وسطی بحران سے متعلق چینی قیادت کو اعتماد ملیں گے۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی مشاورت ہوگی۔ امریکہ ایران معاملے پر بھی بحث ہوگی۔ دورے کے دوران سرمایہ کاری اور نئے معاہدوں پر پیش رفت کا امکان ہے۔ صنعت، زراعت، خصوصی اقتصادی زونز کے قیام میں تعاون پر بھی بات ہوگی۔ اس موقع پر 2 طرفہ تجارت، سی پیک کے منصوبوں کی رفتار تیز کرنے پر بھی مشاورت ہوگی۔ دفتر خارجہ نے دورہ چین کے شیڈول کی تیاریاں شروع کر دی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے یورپی یونین کے سینئر حکام اور ممتاز یورپی کمپنیوں کے کاروباری نمائندوں کے وفد نے اہم ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین کے وفد کا پاکستان میں خیر مقدم کیا اور یورپی یونین پاکستان بزنس فورم میں شرکت پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر اور پاکستان سے برآمدات کے سب سے زیادہ حجم کی منزل ہے اور حکومت یورپی یونین کے ساتھ تجارتی سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گی۔
मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी तामील पर अमल दरामद को मज़ीद आसान और कम खर्च बनाने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। लाइसेंसिंग और दीगर सर्विसेज तक रसाई के सारे निज़ाम की डिजिटाइजेशन की रफ्तार तेज़ की जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम से मुल्क में सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया, रवा माली साल जुलाई से मार्च तक मुल्क की बरामदात में खुसूसी इक़्तिसादी जोन का हिस्सा 3.7% रहा। मार के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर वाहगा बॉर्डर पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। वाहगा बॉर्डर पर मुनक़िद होने वाली खुसूसी तकरीब में कौमी हीरो, सियासी मजहबी शख्सियात, तलबा, अक़लियती बरादरी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने वाहगा बॉर्डर पर होने वाली खुसूसी परेड में गहरी दिलचस्पी ली और अफवाज पाकिस्तान से अपनी वालिहाना मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। तकरीब के दौरान फ़ज़ा पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। शुरका ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाएं और मार के हक के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। शहरियों ने कहा कि मार के हक में दुश्मन को जिस अंदाज में सबक सिखाया गया, आइंदा भी हर जारियत का इसी क़ुव्वत और अज़्म के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का प्ले ऑफ मरहला जारी। कराची के नेशनल स्टेडियम कराची में प्ले ऑफ मरहले का अहम मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जा रहा है। मैच के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिंध पुलिस की जानिब से स्टेडियम और अतराफ में हाई अलर्ट नाफिज है। इस वक्त नुमाइंदा NTN न्यूज़ राशिद अनवर पुलिस ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं। जी राशिद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर, जहाँ पर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान प्ले ऑफ का मरहला जारी है। आप मेरा कप आप देख सकते हैं कि बड़ी रश देखी जा रही है यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी भी बड़ी हाई अलर्ट है। इस वक्त एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात जानते हैं उनसे। जी बताइएगा राशिद साहब, सिक्योरिटी में देख रहे हो बहुत हाई अलर्ट है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, बहुत हाई अलर्ट है। बिल्कुल हम नौकरी पे फरक खड़े हुए हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, सारी आवाम को भी देख रहे हैं। बिल्कुल पुरअमन तरीके से चल रहा है सारा सब कुछ। DIG साहब की क्या बात है, इसको क्या फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने बोला है, बिल्कुल जी सिक्योरिटी हाई अलर्ट में रहना, कोई ऐसा हंगामी आराई ना हो, कोई मसले मसाइल ना हो, उसको निपटने के लिए हमें खड़ा किया हुआ है यहाँ। जी बिल्कुल, पुलिस अफसर का यही कहना था कि DIG के सख्त अहकाम हैं कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए आप लोग हाई अलर्ट खड़े रहें। अब तक जो है ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। और जहाँ तक मैच की बात की जाए तो शायकीन क्रिकेट में बड़ा जोश खरोश देखा जा रहा है। मैं बड़ी तादाद में देख रहा हूँ कि यहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो है यहाँ पर आ रहे हैं और मैच देखने के लिए। अब तक जो है ना यहाँ पर टिकट जो है ना बेचे जा रहे हैं और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट बड़ा जोश जज्बा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता चलूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी इस बार आए हैं और बहुत अच्छे जो मैचेस हुए हैं यहाँ पर, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। जी खेल के मैदान से आपको खबर देते चलें कि कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे PSL प्लेऑफ मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 222 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बल्लेबाजी जारी है। पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। बाबर आजम ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 59 गेंदों पर 130 रन स्कोर किए। बाबर आजम के T20 करियर की 13वीं और PSL की 34वीं सेंचुरी है। कुशाल मेंडिस ने 41, मोहम्मद हारिस ने 35 और एरन हार्डी ने 20 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से रिचर्ड ग्लेसन ने 2, जबकि सलमान मिर्जा और फ़हीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। मैच के फाते को फाइनल में जगह मिलेगी, जबकि हारने वाली टीम के पास एक और मौका मौजूद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सूबा होनान का दौरा मुकम्मल करने के बाद चीन के सूबा हाईनान के शहर सानिया पहुंच गए। सदर मुमलिकत का सानिया आमद पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाईनान के पार्टी सेक्रेटरी वांग जियांग ने इस्तकबाल किया।
आसिफ अली जरदारी की सानिया आमद पाक चीन आला सतह रवाबित के तसलसल और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ का मजहर है। सानिया आलमी सयाहती मरकज़ और हायनान फ्री ट्रेड पोर्ट की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला शहर है, जो इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। सदर मुमलिकत दौरा चीन के दौरान इक़्तिसादी, तिजारती और स्ट्रेटजिक ताउन और सी पैक के फ़रोग़ पर सूबाई क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। सदर मुमलिकत सानिया में पाक बहरिया की आबदोज़ हंगोर की कमिश्निंग तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर सेहत सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है और रवा माली साल GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़ायद सरप्लस और तरसीलात ज़र $3.8 अरब रहीं। रोशन डिजिटल सरमायाकारी का अहम ज़रिया है। मार्च में रोशन डिजिटल अकाउंट में $260 मिलियन आए। अप्रैल में पाकिस्तान ने भारी बैरूनी अदायगियाँ की और $1 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया। मई के वस्त में $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करने का प्लान है। उनका ये भी कहना था कि निष्कारी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कौमी एयरलाइन की कामयाब निष्कारी की गई। पाकिस्तान के बड़े कारोबारी ग्रुप्स कंसोर्शियम की शक्ल में सरमायाकारी करना चाहते हैं। लाहौर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निष्कारी को हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाएगा। और आपको बताएं, PIA निजकारी में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 100% शेयर्स खरीद लिए हैं। तर्जुमान PIA कंसोर्शियम के मुताबिक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के मजीद 25% शेयर्स के लिए रकम जमा करवा दी है। मुआहिदे के तहत 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी भी जमा करवा दी गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास PIA के 25% शेयर्स की खरीदारी का ऑप्शन मौजूद था, जबकि उन्होंने PIA के 75% शेयर्स पहले ही खरीदे हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से रुकन कौमी असम्बली कादर पटेल ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की, जिसमें सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों की जानिब से अगवा किए गए ऑयल टैंकर के पाकिस्तानी अमले की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अब्दुल कादिर पटेल ने चेयरमैन को बताया कि MT ऑनर 25 के 17 रुकनी अमले में 10 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं और इनमें 6 का ताल्लुक कराची, जबकि बाकी अफराद सवात, बाजोड़, साहिवाल और मर्दान से हैं। मुख्वी अमले को बहरी कज़ाकों की जानिब से तशद्दुद का सामना है और खुराक की भी शदीद किल्लत है। उनका कहना था कि इंडोनेशिया अपने 7 शहरियों की रिहाई के लिए बहरी कज़ाकों से राब्ते में है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सोलर सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। नेपरा ने छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ देते हुए 25 किलोवाट और उससे कम सलाहियत के सिस्टम्स पर लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। 25 किलोवाट से ज़ायद लोड इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 1000 रुपये लाइसेंस फ़ीस अदा करनी होगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक ये इक़दाम वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर उठाया गया। पावर डिवीजन ने नेपरा को बाकायदा ख़त लिखकर छोटे सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने पावर डिवीजन के ख़त के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत न सिर्फ लाइसेंस की शर्त ख़त्म होगी बल्कि छोटे सोलर सार्फिन को पर सार्फिन को किलोवाट फीस भी खत्म कर दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTV।